Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, we have started reading with our chapter number 9 from the book Footprints Without Feet. The name of the chapter is Bholi, okay. So we were reading one story about Bholi, and in the previous video we have read about her first day in the school, okay. And we have read that she was so touched, okay, because जो उनकी lady teacher थी, she was so full of love, she was so full of affection, okay. That's why she was so touched. And we have also seen that Bholi was so fascinated with the colorful pictures, okay. So she was actually having a very good day in the school, okay. So what will happen next, we will come to know. So let's continue the chapter. In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village, okay. So in the previous video we have read that the lady teacher of Bholi, right, she gave her a book, okay, a book of alphabets. That was a beginner's book. And then the lady teacher, she said that in 1 month you will be able to read this book, okay. So abhi Bholi jo hai, she was not having any idea about the alphabets or the लेटर्स, ओके. वो सिर्फ पिक्चर्स को देख रही है, उससे से वो कलरफुल पिक्चर्स अच्छी लग रही थी, ओके. सो जो टीचर है वो कहती हैं कि नाउ अभी तुम तुम्हें बुक समझ नहीं आ रही, तुम्हें लेटर समझ में नहीं आ रहे हैं, बट ओनली इन अ मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, ओके. देन शी सेड दैट देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, ओके. जब तुम ये अल्फ़ाबेट सीख जाओगी, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक एंड देन वन मोर बिगर वन, ओके. एंड इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, ओके. देन द टीचर सेड कि अगर तुम इसी तरह से पढ़ती रही, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो स्टडी में होता रहा, एंड यू विल बी एबल टू रीड सो मैनी बुक्स, देन डेफिनेटली वन डे यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन दिस एंटायर विलेज, ओके. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, ओके. एंड वंस अगर तुम लर्नेड बन जाओगी, तुम एजुकेटेड बन जाओगी, देन डेफिनेटली नो वन विल लाफ एट यू, ओके. सो दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन दैट द टीचर इज ट्राइंग टू कन्विंस भोली, ओके. जो वो भोली को बताना चाहती हैं, भोली को समझाना चाहती हैं दैट रियली एजुकेशन हैज दिस पावर, कि अगर तुम एजुकेटेड पर्सन बन जाओगे, लर्नेड पर्सन बन जाओगे, देन डेफिनेटली तुम्हारी जो बाकी सभी जो फ्लॉज हैं, और चाहे वो तुम्हारी जो स्किन पे जो ये ब्लैक मार्क्स हैं, राइट, ये सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ बिल्कुल मैटर नहीं करेगा अगर तुम्हारे पास एजुकेशन हो जाएगी, ओके. सो दिस इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन, ओके. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer, okay. Next the teacher, she said that then when you will be one educated person, when you will be learned person, then all the people in the village, they will listen to you, okay, and that too also with respect, okay. And then you will be able to speak without the slightest stammer, okay. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning, okay. Next the teacher, she said that now you can go home because the school is over and come back early tomorrow morning, okay. So this was the first day of Bholi in the school, okay. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in the front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers, okay. So Bholi jo thi, she was so happy, she was so glad. Why? Because for the first time उसकी life में किसी ने उससे इतने अच्छे से बात की थी. Now she was having someone there to guide her, okay. कोई था जो उसके बारे में इंटरेस्ट ले रहा था, भोली की लाइफ में जिसे इंटरेस्ट था, भोली के फ्यूचर में जिसे इंटरेस्ट था, ओके. सो now Bholi she was definitely very happy because earlier in the chapter we have read that Bholi को अपने घर में ही बहुत ज़्यादा ignore किया जाता था. She was neglected in her own home, okay. So now for the first time she was having someone to guide her, someone who was there to take interest in her life, in her future, okay. So definitely she was very happy, and she was so happy that she was feeling that all the bells in the village temple, all the bells are ringing, okay. And she was feeling as if जो trees है in front of the school house, okay, all the trees are blossomed into big red flowers, okay. So उसको इतना अच्छा लग रहा था, उसका वो दिन इतना अच्छा दिन था कि उसको ऐसा लग रहा था कि सभी bells एक साथ बजने लग गई हैं, और जितने भी trees हैं सभी trees पे रेड कलर के beautiful flowers जो है वो आ चुके हैं, right. So she was actually feeling very happy, okay. Her heart was throbbing with a new hope and a new life, okay. And for the first time she
वॉज हैविंग अ होप, ओके। अब तक उसकी जो लाइफ थी दैट वॉज टोटली होपलेस, ओके, बिकॉज घर पे भी उसको ऐसे ट्रीट किया जाता था दैट यू नो उसकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं है, शी वॉज नॉट हैविंग एनी होप, एनी फ्यूचर, ओके। बट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम उसे ये रियलाइजेशन होता है दैट नो, अगर एजुकेशन वो अच्छी अपनी कर लेती है देन डेफिनेटली शी इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, ओके। सो फॉर द फर्स्ट टाइम शी वॉज हैविंग अ न्यू होप, शी a hope of a new life, okay, and because of that hope her heart was throbbing means to beat strongly, okay. So her heart was beating so strongly, her heartbeats were so strong, okay. Why? Because now she was having a new hope for a better life, hope for a bright future, okay. और ये जितनी भी होप है ये सब किसकी वजह से हैं? वो लेडी टीचर की वजह से है, ओके। Thus the years passed, okay. सो इस तरह से जो भोली है वो स्कूल में जाती रही और इस तरह से वो स्टडी करती रही, उसका जो इंटरेस्ट था स्टडी में वो भी ग्रेजुअली और डेवलप होता गया ओके टाइम के साथ। और इसी तरह से बहुत सारे ईयर पास हो जाते हैं, ओके। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, ओके। अब बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो पास हो जाता है एंड नाउ दैट विलेज नाउ इट वॉज अ स्मॉल टाउन, ओके। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, ओके। और जब वहाँ पे वो स्कूल ओपन हुआ था एट दैट टाइम इट वॉज अ प्राइमरी स्कूल, बट नाउ आफ्टर सो मैनी ईयर्स नाउ इट वॉज टर्न इन टू अ हाई स्कूल, ओके। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन ग्रीनिंग मिल, ओके। और अब जो विलेज था, विलेज में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था because now it was a town, so now there was a cinema also in that village, in that town, and that was under a tin shade, okay. So in this picture we can see this is a tin shade looks like this only. So वहाँ पे एक सिनेमा भी जो था वो ओपन हो चुका था और वो सिनेमा कैसे वहाँ पे चलता था? टिन शेड के अंदर चलता था, ओके। and now in that town there was a cotton greening mill, okay. so this mill in this picture we can see this is a cotton greening mill, okay. so now there were so many developments in that village, okay. The mail train began to stop at the railway station, okay. One more development was there and वो development क्या था? जो मेल ट्रेन थी वो उस विलेज के उस टाउन का जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पे वो रुकना स्टार्ट हो चुकी थी, ओके। सो दीज वर ऑल द डेवलपमेंट्स जो इतने ईयर्स में उस विलेज में हो रहे थे, ओके। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" Okay, so अब बहुत सारे years जो है वो पास हो चुके हैं. After so many years, one night after dinner, Ramlal is the father of Bholi. Okay, so one night Bholi's father he said to his wife. Okay, so what did he say? He said, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" Okay, so they were discussing about one proposal, and this proposal was from Bishambar. Okay, so they were discussing about that proposal, and Bholi's father he asked to Bholi's mother, okay, that should we accept this proposal? Okay, yes, certainly, his wife said. Okay, so what was the answer of Bholi's mother? She said that yes, certainly, definitely we should accept this proposal. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. Okay, so now we came to know that what this proposal was about. So this proposal was a marriage proposal for Bholi. Okay, और ये जो प्रपोजल था ये बिशंबर की तरफ से आया था, और जो भोली की मदर है वो कह रही हैं दैट भोली विल बी लकी, ओके, बिकॉज उसका जो ब्राइडग्रूम है, ओके, वो इतना वेल टू डू है, राइट, वो इतनी अच्छी फैमिली से है, वो इतनी रिच फैमिली से है, तो अगर ऐसे में हमें प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे देन डेफिनेटली भोली विल बी वेरी लकी. ओके, अ बिग शॉप, अ हाउस इन हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. ओके, क्यों वो उससे वेल टू डू ब्राइडग्रूम क्यों कह रही हैं? बिकॉज ही इज़ अ वेरी रिच, एंड वो रिच क्यों है? बिकॉज ही इज़ हैविंग अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड भोली की मदर ने ये भी सुना था डेट ही हैड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. ओके, सो बैंक अकाउंट में भी काफ़ी मनी है, अपना खुद का घर है और एक शॉप भी है. ओके, सो इसलिए वो एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करता है. दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू भोलीज मदर शी विल बी वेरी लकी अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है. ओके, moreover he is not asking for any dowry. Okay, one more thing that was there for this proposal कि ये जो person है बिशंबर, okay, he was not asking for any dowry. Okay, so what is dowry? Dowry is the amount, okay, that is given by the bride side in the marriage. Okay, that's right, but he is not so young, almost the same age as I am, and he also limbs. Okay, but Bholi's father Ramlal he was a little bit concerned. Why?
So he is saying that okay, that's right, you are right that he belongs to a very rich family, but he is not so young, you know. Okay, so next he added कि सारी बातें सही हैं, वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, डाउरी भी नहीं उन लोगों को चाहिए, बट व्हाट्स द थिंग इज दैट ही इज नॉट सो यंग. ओके, एंड व्हाट इज हिज एज? ही इज ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, राइट. सो जो एज भोली के फादर की है, रामलाल की है, राइट, ऑलमोस्ट उसी एज का ये पर्सन है बिशंबर, राइट, जिसका प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल आया है भोली के लिए. ओके, एंड ही ऑल्सो लिम्स. ओके, और सो पहली चीज़ तो क्या है, डैट ही इज सो ओल्ड. ओके, उसकी एज इतनी ज़्यादा है. एंड सेकेंड थिंग इज डैट ही लिम्स. लिम्स मीन्स अ लेम पर्सन हु इज़ अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, राइट, जिसके पैर में कुछ प्रॉब्लम होती है, एंड बिकॉज ऑफ डैट ही इज़ अनेबल टू वॉक प्रॉपरली. ओके, मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. ओके, एंड वॉट इज वन मोर थिंग अबाउट हिम, दैट इट्स नॉट हिज फर्स्ट मैरिज, राइट. उसकी एक बार पहले शादी हो चुकी है, राइट, और उसकी जो फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं, ओके, सो दे आर ऑल्सो क्वाइट ग्रोन अप. ओके, सो फॉर हिम इट इज़ अ सेकेंड मैरिज. ओके, और जो उसकी फर्स्ट मैरिज है, उसकी जो फर्स्ट वाइफ है, उसके जो बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो ग्रोन अप. ओके, सो मैनी थिंग्स आर देयर विद दिस पर्सन बिशंबर. स्टिल भोलीज मदर, राइट, उनका क्या कहना है, शी इज सेइंग दैट भोली विल बी लकी इफ वी एक्सेप्ट दिस मैरिज प्रपोजल. ओके, so what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. Okay, so जब भोली के फादर ने, ओके, उन्होंने जब सारे माइनस पॉइंट बताए, क्या 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 कमियां हैं बिशंबर में, जब उन्होंने वो काउंट करी, सो आफ्टर दैट भोलीज मदर, व्हाट वाज हर रिप्लाई, शी सेड दैट सो व्हाट डज इट मैटर. वो कह रही इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, देन शी सेड दैट इट इज़ 45 और 50. कभी भी एक मैन की जो एज है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होती, शादी के वजह से कभी भी ज़्यादा एज नहीं होती है, एज से कोई भी मैटर नहीं करता एज. ओके, वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट द पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. ओके, सो जो भोली की मदर है, शी वॉज हैविंग दिस ओपिनियन दैट शी सेड दैट वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज. ओके, वो दूसरे गाँव से बिलोंग करता है, एंड दैट्स वाई ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द पोक मार्क्स. ओके, जो भोली की पूरी बॉडी पे पोक मार्क्स हैं, जो कि उस डिजीज़ की वजह से, स्मॉल पॉक्स की वजह से हो गए थे, उन पॉक्स मार्क्स के बारे में उसे बिल्कुल नहीं पता. एंड ही इज़ नॉट हैविंग एनी आइडिया दैट भोली इज़ नॉट हैविंग प्रॉपर सेंस, राइट, कि भोली जो है वो एक्चुअल में भोली है, शी इज़ नॉट हैविंग प्रॉपर सेंस, ये बातें उसे नहीं पता है. ओके, सो हियर वी कैन सी कि जो पर्सन है बिशंबर, इसने भोली को अभी तक देखा नहीं है, उसको भोली की जो पूरी बॉडी पे जो पोक मार्क्स है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. बट वन मोर थिंग इज़ देयर, जो हमें पता चलती है कि जो भोली की मदर है, राइट, सो अर्लियर इन द चैप्टर ऑल्सो वी हैव रेड दिस थिंग, कि उनको ये लगता था कि जो भोली है उसकी मैरिज होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है. ओके, और जब ये प्रपोजल आता है बिशंबर का, सो उनको लगता है कि भोली विल बी वेरी लकी कि ये प्रपोजल अगर हम एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज उसके पास मैरिज करने के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. वाई? बिकॉज उसकी बॉडी पे ब्लैक कलर के पोक मार्क्स हैं, वो स्टैमर करती है, एंड ऑल्सो शी इज़ नॉट हैविंग प्रॉपर सेंस. ओके, if we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. Okay, that's why Bholi's mother, she added next, she said that अगर हम ये proposal accept नहीं करते हैं because of these thing कि उसकी एज ज़्यादा है, राइट, वो ढंग से चल नहीं पाता है, अगर इन रीजंस की वजह से हम ये proposal accept नहीं करते हैं और हम वेट करते हैं कि कोई दूसरा सुटेबल proposal आएगा, then definitely भोली will remain unmarried all her life, because इससे अच्छा proposal भोली के लिए नहीं आ सकता है. दिस वॉज भोलीज मदर्स ओपिनियन. ओके, Yes, but I wonder what Bholi will say. Okay, so भोली के जो father है, he is still a little bit considerate towards this thing, and he said that okay, all the things are quite right, but I still wonder भोली क्या कहेगी, भोली को कैसा लगेगा जब इस प्रपोजल के बारे में हम भोली से बात करेंगे. So what will be her answer? Okay, what will be her reaction? What will that witless one say? Okay, so भोली की जो मदर है, what is her reply? She is saying that वो witless क्या कहेगी. Witless means a foolish person or a stupid person. Okay, so according to Bholi's mother, Bholi is a foolish person. Bholi is a person who is not having any wit. Okay, so वो कह रही है कि वो तो वैसे भी एक witless है, so वो क्या कहेगी, वो कैसे react करेगी. Okay, she is like a dumb
cow. Okay, so next she compared her own daughter with a dumb cow. Dumb means who is unable to speak. Okay, maybe you are right, muttered रामलाल. Okay, so जो उसके फादर हैं रामलाल, वो सच में बहुत ज़्यादा भोली के बारे में सोच रहे थे, बट भोली की मदर की सारी बातें सुनने के बाद फाइनली ही सेड दैट ओके मे बी यू आर राइट, मे बी जो भी तुम कह रही हो सारी बातें बिल्कुल सही हैं, एंड वी शुड एक्सेप्ट दिस प्रपोजल फॉर भोली. ओके, इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट. ओके, जो ये बातें हो रही थी बिटवीन भोलीज फादर एंड हर मदर, सो ये सारी जो बातें थी भोली ये सारी बातें सुन रही थी. वाई? बिकॉज शी वॉज अवेक ऑन हर कॉट. राइट, वो अपने बेड पे जागी हुई थी, और उसका बेड कहाँ था? इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड. राइट, उसी कोर्टयार्ड के दूसरे कोने में उसका बेड था, एंड शी वॉज एबल टू लिसन ऑल दिस कॉन्वर्जेशन, ऑल दिस डिस्कशन. ओके, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्जेशन. ओके, सो भोली जो थी अपने बेड पे जागी हुई थी, एंड शी वॉज लिसनिंग ऑल द कन्वर्जेशन, शी वॉज लिसनिंग ऑल द डिस्कशन दैट वॉज गोइंग ऑन बिटवीन हर फादर एंड हर मदर. ओके, बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर. ओके, अभी जो बिशंबरनाथ है एक्चुअल में कौन है? ही इज़ अ ग्रोसर. ओके, सो उसकी ग्रोसरी की शॉप है, एंड ही इज़ एक्चुअली अ वेल टू डू ग्रोसर. सो उसकी शॉप जो है वो काफ़ी सही अच्छी चलती है. ओके, ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग. ओके, सो फाइनली क्या होता है, जो भोली के पेरेंट्स हैं वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो भोली की मैरिज है वो बिशंबरनाथ के साथ फिक्स हो जाती है. ओके, अब मैरिज का दिन आ जाता है फाइनली, और जो बिशंबरनाथ है ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग. ओके, सो ही इज एक्चुअली अ वेल टू डू ग्रोसर, एंड ही इज हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, एंड फॉर द वेडिंग ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स. पार्टी मीन्स ग्रुप. ओके, सो बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ वो आता है इन दैट विलेज फॉर द वेडिंग. ओके, a brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. Okay, so when finally Bishambarnath he was there for the wedding, okay, with all his friends, with all his families. So जो marriage procession था, okay, that was headed by a brass band. Okay, so what is brass band? In this picture we can see this is a brass band, and this band was playing a very popular tune from an Indian film. Okay, so we all have seen such kind of band. Okay, जो इस तरह की ट्यून बजाते हैं मैरिजेस में, so हम सब ने इस तरह का प्रोसेशन देखा है. ओके, सो वो जो बिशंबरनाथ था ही वॉज ऑल्सो देयर इन दैट प्रोसेशन. ओके, विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स. ओके, एंड द ब्राइडग्रूम हु वाज द ब्राइडग्रूम बिशंबरनाथ. ओके, सो ही वाज देयर राइडिंग अ हॉर्स दैट वाज वेल डेकोरेटेड. ओके, रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच pomp and splendor. Okay, so now Ramlal, Bholi's father, he was overjoyed, he was so happy, he was so glad when he saw such pomp and splendor. Okay, so what is pomp? Pomp means a display that is very splendid. Okay, and splendor means something that is very magnificent. Okay, so ये जो marriage procession था it was so magnificent, it was so splendid, right? इतना ज़्यादा pomp and show था that जो रामलाल था he was so happy, he was so glad कि finally यानी जो उनकी डॉटर है भोली फाइनली उसकी मैरिज हो रही थी, और वो भी इतनी अच्छी फैमिली में हो रही थी, इतनी रिच फैमिली में हो रही थी. राइट, सो जो बिशंबरनाथ था वो बहुत ही वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता था. दैट्स वाई रामलाल ही इज सो हैप्पी कि फाइनली भोली की जो मैरिज है वो इसको इतना अच्छा मैच मिला है, वो इतनी वेल्दी, इतनी रिच फैमिली में उसका रिलेशन जो है वो हुआ है, इतनी अच्छी फैमिली में वो जा रही है. ओके, सो रामलाल ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो ग्लैड. ओके, he had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. Okay, so for him it was like a very grand wedding, right? and उन्होंने कभी भी ये बात सोची तक नहीं थी कि उनकी जो फोर्थ डॉटर है भोली she would have such a grand wedding. Okay, so this was like a dream for him, and that's why he was so happy. Okay, Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. Okay, so it was such a grand wedding that all Bholi's elder sisters, right, who were there to attend this marriage, who were there to attend this occasion, right, so they were all anxious because of her luck. Anxious means jealous. Okay, so उसकी जो बड़ी sisters थी, right, they were all jealous because उनकी wedding इतनी grand नहीं हुई थी, उनके जो grooms थे, right, वो इतने well to do family से, इतनी rich family से belong नहीं करते थे, so
दे ऑल वर जेलस बिकॉज ऑफ भोलीज लक, राइट, कि भोली कितनी रिच फैमिली में जा रही है, कितने रिच ग्रूम से इसकी मैरिज हो रही है, दैट्स वाई दे ऑल वर सो जेलस. ओके, when the auspicious moment came, the priest said, bring the bride. Okay, so now finally the auspicious moment, जो मैरिज का auspicious moment होता है, finally वो आ जाता है. then the priest, right, जो priest होते हैं मैरिज के, so finally he said, bring the bride. Okay, Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. Okay, so जब priest होते हैं, जब वो bride को बुलाने के लिए कह देते हैं, so at that time जो भोली है वो वहाँ पे आती हैं, as she was clad in a red silken bridal dress. Okay, so जो bridal dress होती है, जो सभी brides पहनती हैं, red कलर की थी, silk की थी, so she was wearing that dress and she was led to the bride's place that was near the sacred fire. Okay, Garland the bride, one of his friend prompted बिशंबर नाथ. ओके, और जब ब्राइड वहाँ पे आ जाती है, जब भोली वहाँ पे आ जाती है, सो यू नो जो बिशंबर नाथ था उसके जो फ्रेंड्स थे उनमें से वन ऑफ द फ्रेंड ही prompted him, prompt means encourage him, right, so he encouraged him and he said Garland the bride. Okay, The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. ओके, सो अब ये टाइम आ जाता है जब इन्हें आपस में एक दूसरे को यू नो गार्लैंड पहनानी है. सो जो ब्राइडग्रूम है वो क्या करते हैं, ही लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड. ओके, सो येलो मैरीगोल्ड की जो गार्लैंड होती है, हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस इज अ गार्लैंड मेड ऑफ यू नो येलो मैरीगोल्ड फ्लावर्स. इस तरह की गार्लैंड ही लिफ्टेड. अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. ओके, और इसी समय क्या होता है, वन वुमन हु वाज there, she slipped back the silken veil from the bride's face. Okay, so what is veil? In this picture we can see this is a veil. Okay, जिसे हम कहते हैं ना घूंघट, जितनी भी ब्राइड्स होती हैं उस तरह का अपना फेस उन्होंने से कवर करती हैं वेल से. सो भोली ने भी अपना फेस उन्होंने कवर कर रखा था. जो उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, उस रेड कलर की सिल्कन ड्रेस का उसने यू नो वेल बना के अपना फेस कवर कर रखा था. बट वन वुमन वॉज देयर एंड शी स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल. ओके, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस. ओके, और जैसे ही भोली का फेस यू नो अनकवर होता है, उसका जो वेल है वो हट जाता है. सो बिशंबर क्या करता है, ही टुक अ क्विक ग्लांस. ओके, बिशंबर ने इससे पहले भोली को देखा नहीं था, राइट. सो जैसे ही उसका वेल थोड़ा सा हटता है, बिशंबर जल्दी से यू नो टुक अ ग्लांस, जल्दी से एक बार उसको देखता है, उसके फेस को देखता है. द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स. ओके, और जैसे ही वो भोली का फेस देखता है, उसके हाथ में जो गार्लैंड उसने उठा रखी थी, ओके, that garland remained poised. Poised means still or we can say motionless, right. so उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं, उसके हाथ वहीं motionless हो जाते हैं जैसे ही वो भोली के फेस को देखता है. why? so we all know because there were so many black color poke marks on Bholi's face. okay, बिशंबर नाथ he was not aware about this thing because उसने भोली को इससे पहले कभी देखा नहीं था. so he was not having this idea, right. और अब जब उसने भोली का फेस देखा, सिर्फ एक ग्लांस उसने देखा, सो वो देखते ही उसका जो हाथ है वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है. ओके, द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस. ओके, अब जो ब्राइड है भोली, वो फिर से अपना वेल, फिर से अपना घूंघट जो है वो अपने चेहरे पे, अपने फेस पे यू नो ले लेती है, फिर से अपने फेस को अपने वेल की हेल्प से यू नो कवर कर लेती है. ओके, सो स्टूडेंट, what will happen next? Now when Bishambhar Nath, now when he had seen you know the poke marks that were there on Bholi's face, so now what will be the reaction of him, वो कैसे रिएक्ट करता है, राइट. और ये जो मैरिज है, क्या ये अच्छे से यू नो प्रॉपर वे में हो जाती है, और देयर विल बी सम ट्विस्ट, वी विल कम टू नो व्हेन वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.